Hello, wonderful learners. This is Achal, your learning buddy, and we are going to take up civics for class 6, right? So, in this session, we'll be covering the first chapter, that is diversity. Okay, जिसे हम क्या कहते हैं, हर लोग जो है वो डिफरेंट होते हैं, हर चीज़ डिफरेंट होती है, कल्चर्स डिफरेंट होते हैं. सो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है, राइट? So let's talk about diversity that prevails in India. So we'll be learning about the meaning of diversity, unity, then the reasons of this diversity that we are talking about, and the characteristics of diversity in India, right? So children, we identify things by names, shapes, qualities. कोई भी चीज़ को हम कैसे पहचानते हैं, उसके नाम से, right? उसकी different shapes हैं, उसकी different characteristics हैं, right? Everything is different. So if everything and everyone was same, it would become boring or monotonous. अगर हर चीज़ दुनिया की सेम होगी, हर इंसान एकदम सेम दिखेगा, एकदम सेम एक्ट करेगा, राइट? उसका बोलने का तरीका सेम होगा, तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी ना, राइट? ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे एक दूसरे से, राइट? कि हम किसी से अलग दिखते हैं, हमारे व्यू पॉइंट्स अलग हैं. सो दिस ब्रिंग्स सम चैलेंजेस इन लाइफ. हमारी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आता है, बोरिंग नहीं होती हमारी लाइफ इफ देयर इज डाइवर्सिटी. सो चिल्ड्रन, कैन यू फाइंड एनी टू ह्यूमन बींग्स अलाइक, जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हो? कोई ऐसे ह्यूमन बींग्स आप ढूंढ सकते हैं जो देखने में, हाइट में, लुक्स में, राइट, इन एवरीथिंग, इन देयर बिहेवियर एकदम सेम हो? No, everyone is different in his or her own way. So there are definitely differences among people which we can make out at one glance. जो हम एक नज़र में देखते ही हम पहचान लेते हैं that yes, ये पर्सन का नाम ये है, ये पर्सन का नाम ये है. हमारे आसपास आप देखेंगे, आप अपने आसपास, आप अपने फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? उनकी डिफरेंट लुक से, उनके डिफरेंट नेम से, और सब एक से होंगे तो पता ही नहीं चलेगा. The state of being different or being unique is called diversity. ये जो state है where you are different in your own way, हर एक person जो है वो unique है, that is known as diversity. Here, difference does not mean that every person does different things. It means doing the same things differently. यहाँ पर हम difference की बात ये नहीं कह रहे हैं कि हर इंसान जो है वो अलग अलग चीज़ें करे, but there is a difference in doing those similar things. एक ही चीज़ हर इंसान different तरीके से करता है. So that is what we are talking about. It is like praying to God. हर इंसान जो है उसका भगवान से कनेक्ट करने का, उनसे प्रे करने का वे इज़ डिफरेंट, राइट? क्रिश्चियंस प्रे टू देयर गॉड इन डिफरेंट वेज, हिंदूज डू इट डिफरेंटली, इस्लाम पीपल, मुस्लिम्स पीपल जो होते हैं वो डिफरेंटली प्रे करते हैं, राइट? सब काम तो एक ही कर रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग टू द सुप्रीम पावर, but they are all doing it in their own different and unique ways. That is known as diversity, right? So some people go to temple, some go to church, and some to the mosque, but everyone prays to the one supreme power. On the other hand, every person tries to communicate and talk, but in different languages. हम सब लोग जो हैं, हम इंडिया की बात करें, so हर स्टेट में every few kilometers you will find different languages being spoken, right? So every person जो बात करते हैं, communicate करते हैं, उनका बात करने का तरीका different होता है, उनकी languages भी different होती हैं. This is what we call diversity, which is one of the most beautiful aspects of life. It is one of the aspects that makes our life beautiful and not dull and boring. Diversity is also necessary these days because it enriches life. ये हमारी life को rich बनाता है. It helps in tapping the resources of each individual, right? हर individual के पास जो उसकी खूबियाँ हैं उसको कैश इन करने में हेल्प करता है, उसको हम फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? इट ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू लर्न अबाउट वन अनदर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. अगर हम बाकी दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, हमें उनके कल्चर की भी चीज़ें पता चलती हैं. वी लर्न सो मच अबाउट देयर ट्रेडिशंस दैट दे फॉलो. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी, राइट? Now let's go into the deeper meaning of diversity. Just look around in your class, children. You would find that everyone is wearing the same uniform, yet everyone is different. सब लोगों ने सेम कपड़े पहन रखे हैं, राइट? सब लोग एक क्लास में बैठे हैं, पर फिर भी सारे बच्चे आप लोग एक दूसरे से
अलग हैं, राइट? आपका माइंडसेट अलग है, आप जो डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, राइट? सो ऑल ऑफ यू आर डिफरेंट. योर क्लासमेट्स कम फ्रॉम डिफरेंट लोकेलिटीज एंड डिफरेंट फैमिलीज. दे मे फॉलो अ डिफरेंट रिलीजन. कोई हिंदुइज्म फॉलो कर सकता है, कोई सिखिज्म, कोई इस्लाम. somebody could be of Jainism follower or a Buddhism follower, right? So आपके जो classmates हैं, they all belong to different religions, different localities. Some come from the hilly regions or from the plains of North India or from the southern parts of India. सब लोग उनके जो roots हैं वो different parts of India से belong कर सकते हैं. They speak different languages at home like Bengali, Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu, Hindi, Punjabi, Urdu. There are so many languages in India जो अपने घर में वो बच्चे बोलते होंगे. This difference that we are talking about is called diversity, right? Now let's see what is unity. Unity means ekta. Although the students are from diverse backgrounds, yet they are your friends and you all study together as members of one section of class 6, right? So, सारे बच्चे अलग होने के बावजूद, you all live together, you all study together, आप सब एक दूसरे के इतने अच्छे friends हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, you spend good times together, you have fun together, right? So, आप लोग सब बच्चे एक ही section को belong करते हैं, दो आप सब लोग different हैं in your own ways. You are classmates, you study and play together, have debates and competitions against other sections of your class, right? So you behave like one united team. आप एक टीम की तरह एक्ट करते हैं. एक सेक्शन जो है आपका पूरी एक टीम है. ओके, सो thus you are united together. आप सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं as one even while all are from diverse backgrounds. आप सब लोग एक हैं, although आप सब लोग different family background से belong करते हैं, different religious background से belong करते हैं. In a nutshell, this is what unity in diversity means. So अगर हम short में बोलना चाहें, this is what is unity in diversity. That is अनेकता में एकता, और यही हमारे देश की एक सबसे खास बात है. We shall study more about this in this chapter, right? So do you know who coined this phrase unity in diversity? It was done by great historian Vincent Smith. So he gave this phrase unity in diversity. Now let's see the reasons of this diversity. So regional differences in clothes. जैसे जैसे region change होता जाता है तो वहाँ का पहनावा यानी कपड़े भी जो लोग पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, वो भी चेंज होती रहती है. सो व्हाट क्लोथ्स वी वेयर एंड हाउ वी वेयर देम आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट पीपल अराउंड अस वेयर. सो हम जो कपड़े पहनते हैं या फिर किस तरीके से हम वो कपड़े पहनते हैं वो डिपेंड करता है हम कहाँ रहते हैं, आसपास के लोग क्या ट्रेडिशन, क्या कल्चर फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से सब लोग ड्रेसअप होते हैं. So in some regions the men wear turbans, पगड़ी पहनते हैं कई जगहों पर लोग, right? कुछ regions में caps पहनते हैं. And in some they may wear लुंगीज और धोतीज, कहीं पर कुछ लोग लुंगी या धोती भी पहनते हैं. So most of our dresses and food habits have come from our ancestors. हमारे जो पूर्वज थे वो जिस तरीके से ड्रेसअप हुआ करते थे वही कुछ ना कुछ उसमें से ही फॉलो हुआ है. हम लोग भी उसी तरीके से ड्रेसअप होते हैं. Those who lived in hot areas wore headgears like a turban. So जहाँ पर कुछ लोग बहुत गर्मी वाली जगह पर रहते हैं, so वो अपने आप को, अपने हेड को गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए they used to wear turbans, right? So those who lived in hot areas wore headgear like a turban so as to save their head from the scorching heat. Similarly, the people who lived in areas which get a lot of rain wear clothes which are normally kept knee length. कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ बारिश बहुत होती है, so ऐसे लोग knee length तक कपड़े पहनते हैं, right? So that they do not get wet while walking through the waterlogged areas. Rice fields जो होती हैं, paddy fields, वहाँ पर standing water चाहिए होता है crop को. ओके, सो ऐसी जगहें जहाँ राइस फील्ड्स होती हैं, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, बारिश बहुत होती है, तो ऐसी जगहों पर लोग नी लेंथ क्लोथ्स पहनते हैं. सो जो भी हम कपड़े पहनते हैं इट डिपेंड्स ऑन दी लोकेशन, मतलब हम किस जगह पर रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं, हमारे पूर्वज कैसे ड्रेसअप होते थे उस जगह के, उस हिसाब से ही वो ड्रेसिंग फॉलो की जा रही है. ओके.
Next reason is food pattern. So the availability of food in a particular region also sets a pattern of food preferences. जैसे एक जगह की हम बात करें, वहाँ पर एक क्रॉप बहुत अच्छी होती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में वीट बहुत अच्छा होता है तो यहाँ के लोग चपाती ज़्यादा खाते हैं. हम किसी और रीजन की बात करें जहाँ राइस बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोग राइस से बनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं. जहाँ कोकोनट बहुत होता है लोग कोकोनट से बनी चीज़ें खाते हैं, राइट. सो जो फूड पैटर्न्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास लोकली कौन सा जो फूड है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, तो वही फूड पैटर्न बन जाता है वहाँ के लोगों का. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन अ पर्टिकुलर रीजन also sets a pattern of food preferences. The plains of Punjab used to grow more wheat, so people ate more chapatis which are made of wheat. गेहूं से बनी चपाती लोग नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा खाते हैं. Then those areas which grew rice like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal etc. वहाँ पे राइस ज़्यादा होता है, राइस क्रॉप ज़्यादा होती है तो वहाँ के लोग राइस ईटर्स हैं, मेनली वो ज़्यादा राइस प्रेफर करते हैं. Those who stayed in dry regions like Rajasthan where grains like बाजरा was grown, राजस्थान में बाजरा की अच्छी क्रॉप होती है तो वहाँ के लोग बाजरे से बनी रोटियाँ खाते हैं, राइट. सो these started eating these as basic food. So जिस जगह का जो लोकल क्रॉप होता है, जो लोकल फूड होता है, जो सब वहाँ पर बहुत अच्छी जिसकी क्रॉप होती है, वहीं के लोग वही चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं. So those close to seas and rivers they started eating fish. जहाँ पर फिश की अच्छी उनको सप्लाई मिलेगी तो वो लोग फिश ईटर्स हैं ज़्यादा. And others did not have much of agricultural produce around them became more and more meat eaters. So ऐसी जगह जहाँ पर लोगों के पास अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, जहाँ पर फार्मिंग अच्छी नहीं होता, the land might not be suitable for farming. So ऐसी जगहों पर लोग मीट पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं for their food, right? With the passing of time, such dresses and food pattern became traditions which relate to people from a region or religion. और धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो ये जो पर्टिकुलर फूड पैटर्न्स थे, राइट, जो ये पहनने का तरीका था, कपड़ों का जो पहनावा था, वो एक रिलीजन से एसोसिएट होने लगा, किसी रीजन से एसोसिएट होने लगा. दैट यस पीपल ऑफ राजस्थान दे ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे, पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया दे ड्रेस अप इन दिस सर्टेन वे. सो वो एसोसिएट किए जाने लगे, रिलेट किए जाने लगे फ्रॉम अ पर्टिकुलर विद अ पर्टिकुलर रीजन और रिलीजन. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द रिलीजियस बिलीव्स. So religion over a period has been a big binding force among people. ये जो religion है ये लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है. Different people believe in different forms of God. They have different faiths and follow different rituals and customs. हर जो इंसान है वो किसी different ritual, किसी different custom को follow करता है of their own religion. So they have different patterns of prayers and all this leads them to be living different ways of life. हर किसी का प्रे करने का different तरीका होता है, उनके religion के हिसाब से कुछ अलग तरीके से प्रे किया जाता है. So what this does, all this leads them to be living different ways of life. हर किसी का जीने का, रहने का तरीका different हो जाता है बाकी लोगों से. So the Hindus, they go to temples, Sikhs go to gurdwaras, Muslims go to mosques to pray, and Christians go to churches. Clear? Now let's talk about the characteristics of diversity in India. ये जो हम इंडिया में जो diversity की बात कर रहे हैं उसके characteristics, उसके features की बात करते हैं. So the regional differences have brought about many characteristics in the diversity. Let's see. In the languages when we talk about, so Indian Constitution has recognized 22 principal languages, 22 main languages that are there in India. Languages have come into prominence from different regions. So prominence means have come into importance from different regions. People in different parts of India speak different languages. हर different जो state के लोग हैं different parts of India को belong करते हैं, they speak different languages. Like पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, राइट, एंड हिंदी इट इज स्पोकन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया including Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana and so on. So there are basically 22 principal languages that have been recognized in India. Okay, so different जगह के लोग different languages बोलते हैं. So this is one characteristic of diversity in India कि languages जो हैं वो अलग हैं सबकी.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस्टिवल्स। यहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो सम फेस्टिवल्स आर रिलीजियस एंड सम आर लिंक्ड टू दी सीजन्स। कुछ फेस्टिवल्स जो हैं वो रिलीजन्स बेस्ड हैं, राइट। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो रिलीजन स्पेसिफिक होते हैं। कुछ फेस्टिवल सिर्फ क्रिश्चियंस बनाते हैं, कुछ सिर्फ मुस्लिम्स बनाते हैं, राइट। सो ये रिलीजन से स्पेसिफिक हो गए। देन देयर आर सम फेस्टिवल्स दैट आर लिंक्ड टू दी सीजन्स। वो सीजन्स के हिसाब से सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं जो पूरा का पूरा इंडिया एक साथ मनाता है। नेशनल फेस्टिवल्स सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, दे आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट दी कंट्री। ये किसी रिलीजन या स्टेट से स्पेसिफिक नहीं है, हम यूनाइटेड हैं एज वन कंट्री इंडिया, और ये हमारे पूरे देश का नेशनल फेस्टिवल होते हैं। Festivals such as Diwali, Dashera, Holi, Eid, Christmas, they are also celebrated throughout the country. ये भी पूरी कंट्री में खूब जोर शोर से मनाए जाते हैं। Other festivals such as बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल, ओनम, गुरुपर्व and बिहू, they are celebrated in some parts. ये कुछ specific parts में ही celebrate किए जाते हैं। We also celebrate the birthdays of gods and ग्रेट मैन एज फेस्टिवल्स। हम अपने जो भगवान हैं या फिर हमारे कुछ ग्रेट मैन जिनको हम मानते हैं, उनके जो बर्थडेज होते हैं उन्हें भी सेलिब्रेट किया जाता है एज फेस्टिवल्स। लाइक फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा हैं जिन्हें भगवान माना जाता है, राइट। उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है एज जन्माष्टमी। गौतम बुद्धा का बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा, राइट। गुरु नानक देव जी का गुरु नानक जयंती के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सो ऐसे जो हमारे गॉड्स हैं, हमारे जो कुछ रिलीजियस प्रीचर्स हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हर रिलीजन में, उनके बर्थडेज को भी सेलिब्रेट किया जाता है एज फेस्टिवल्स। ओके, दिस वॉज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी डांस फॉर्म्स। जो अलग अलग जगह के जो डांस फॉर्म्स होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। So the dance and music which are followed in different regions you see today find their origins in the folk dance and folk music of yesteryears। मतलब पुराने टाइम में जो folk songs और folk dances हुआ करते थे उससे ये सब ओरिजिनेट हुए हैं आजकल के जितने भी हम डांस फॉर्म्स या फिर म्यूजिक फॉर्म्स देखते हैं। So most music and dance forms were originally performed in temples and were connected to the epics which are depicted in different forms of expression, right। जितना भी music and dance जो थे पहले के टाइम में हम बात करें, they were performed in temples, वो भगवान की पूजा के लिए ही यूज़ किए जाते थे, right। and they are connected to the epics, जो हम बात करते हैं लॉन्ग पोम्स की, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गए, राइट। तमिल में सिलापदिकुलम है। सो वो सब जो हमारे जो एपिक्स हैं, राइट, उन सब से रिलेटेड हैं हमारे जो म्यूज़िकल फॉर्म्स हैं। हम पहले जो पूजा, जो ये डांस और ये म्यूज़िक होता था, ये सिर्फ टेम्पल्स में हुआ करता था। Some are also related to other ceremonies like marriage, childbirth, etc. कुछ म्यूज़िक, कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैरिजेस में बजते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कुछ चाइल्ड बर्थ के लिए स्पेसिफिक म्यूज़िक्स हैं। सो सम डांस फॉर्म्स इन इंडिया कैसे हैं? कथक एंड कथकली इन केरला, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, मणिपुरी इन मणिपुर, बिहू इन आसाम, लावणी इन महाराष्ट्र, गरबा इन गुजरात, पंजाब का भांगड़ा फेमस है, देन घूमर इन राजस्थान। सो ये सब इन स्टेट्स के फोक डांसेस हैं, राइट, जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस इन म्यूजिक। The musical patterns are also varied. Musical patterns भी different हैं, varied हैं। The Carnatic music finds its roots in the southern parts of India, whereas the Hindustani music finds its origins in the northern part of India. जितना भी Carnatic music है वो साउथ में originate होता है, साउथ से related है, and the Hindustani music की हम बात करें तो it has originated in the northern India, right? Now let's talk about the dresses, different dresses people wear in different regions. So there is a diversity in dressing sense also. So if you go to a marriage ceremony, you will find that most people are wearing dresses which they may not wear as normal daily wear. अगर हम शादियों में जाते हैं तो हम लोगों को जिस तरीके से ड्रेसअप हुआ देखते हैं, राइट, सो दे वेयर ड्रेसेस, वो ड्रेसेस वेयर करते हैं जो वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं पहना करते। So these are worn to depict our
कस्टमरी कनेक्शन विद आर ओरिजिन्स, मतलब ये क्या दिखाता है कि हम अपने ट्रेडिशन से आज भी जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। सो जो इम्पोर्टेंट हमारे जो सेरेमनीज होते हैं लाइक वेडिंग्स हो गई, सो वहाँ पर लोग वही पहनावा पहनते हैं जो उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस में इतने टाइम से चलता आया है। द मेजर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रेसेस विच कैन बी रिलेटेड टू रीजन्स आर, जो डिफरेंट ड्रेसेस हम रिलेट करते हैं डिफरेंट रीजन से, वो हैं पंजाब से हम रिलेट करते हैं सलवार कमीज़, देन घाघरा चोली इन राजस्थान, राजस्थान के लोग घाघरा चोली पहनते हैं, देखते ही पहचान जाते हैं यस दिस पर्सन बिलोंग्स टू राजस्थान। लहंगा चोली इन गुजरात, लुंगी इन साउथ इंडिया, कुर्ता पजामा इन सेंट्रल इंडिया, धोती कुर्ता in West Bengal and northeastern parts of the country. So every region has a different kind of dress. Many variations of the same dress can be found in different parts of the country. किसी एक ड्रेस की अगर हम बात करें तो उसके भी काफ़ी वेरिएशंस, काफ़ी डिफरेंट उसके रूप देखे जाते हैं in different parts of the country. For example, if we talk about sari, right? तो sari is worn in more than 10 different styles in different parts of the country and so is the धोती। साड़ी हो गई, धोती हो गई, इसको पहनने का तरीका डिफर करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फूड वेरिएशंस। So people from different parts of the country have different taste and different pattern of food preferences. जो different parts में जो लोग रहते हैं उनके food preferences different है, उनके taste different है, right? जो साउथ के लोगों को जो taste पसंद है वो हम नॉर्थ इंडियंस को मे भी पसंद ना आए बिकॉज दे यूज़ मोर ऑफ कोकोनट इन देयर कुकिंग, तो हमें वो टेस्ट नॉर्थ इंडियंस को वो नहीं अच्छा लगता, उन लोगों को नॉर्थ इंडियंस का टेस्ट और डिफरेंट लग सकता है। सो everyone who lives in a particular place has a certain kind of food preference and a certain kind of taste, right? These have come about depending upon availability of type of grains or other inputs required in preparation of the food. So again we talked about this कि जो लोगों की food preferences हैं वो depend करती हैं कि उनके लोकल रीजन में उनको कौन सा फूड ईजिली अवेलेबल है, या फिर जो भी वो डिश बना रहे हैं, वो डिश बनाया करते हैं उसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं, राइट, वो उनको लोकली ईजिली अवेलेबल हैं या नहीं. सो फूड प्रेफरेंसेस ओवर द टाइम हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस availability of food in a particular region. So you may have seen that people from South India, what do they eat? They eat different type of food like rice, dosa, idli, sambar, vada, etc. उनकी food preferences होती हैं ये सब चीज़ें. They consume many dishes which have coconut, fish and spices which are locally produced and are available in larger quantities in those areas. So वो चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे जो कोकोनट वहाँ बहुत अच्छी मात्रा में होता है, फिश है या फिर जो स्पाइसेस हैं, राइट, सो वो अच्छी पैदावार है उनकी वहाँ पर, सो वो लोग इन सब चीज़ों का अपने फूड में ज़्यादा यूज़ करते हैं. These are very different from the northern states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, etc., where chapatis, wheat chapatis are consumed much more than the rice. So in regions में northern parts में rice से ज़्यादा chapatis, wheat chapatis यूज़ की जाती हैं, खाई जाती हैं. Coconut is not a commonly used ingredient in their foods and many more variety of pulses are consumed which are grown locally. यहाँ पर लोग दाल ज़्यादा खाते हैं, राइट, दाल रोटी ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर ज़्यादा उसकी क्रॉप्स होती हैं, सो यही लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. Also the variety of vegetables is different in different regions. So different जगह पर different kind of vegetables भी होती हैं, so people eat their local vegetables quite more. This is a dosa, idli. These are mainly eaten in southern parts of India, and paratha, chapati, they are more common in the northern India, right? Now children, do you know सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो ये सॉन्ग है वो किसने लिखा था? Yes, it was written by a poet called मोहम्मद इकबाल. मोहम्मद इकबाल नाम के एक पोएट ने ये जो हमारा सॉन्ग है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था. It is a patriotic song which inspired people from all walks of life. लाइफ के हर अलग अलग तबके से लोगों को, सबको इंस्पायर किया इस सॉन्ग ने. ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, इस सॉन्ग ने सबको बहुत इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया.
And then there is another song, Mile Sur Mera Tumhara, तो सुर बने हमारा. This is also an Indian song promoting national integration and unity in diversity. ये सॉन्ग इसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट रिलीजन्स के लोग एक साथ आते हैं और ये सॉन्ग गाते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. सो ये जो सॉन्ग है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है. It refers to diversity coming together in unity for better development of the country. कि हमारे देश की तरक्की के लिए सबको एक साथ आना होगा, इस डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखानी होगी. The song was telecast for the first time on Independence Day in 1988. So year 1988 में इंडिपेंडेंस डे के दिन ये सॉन्ग जो है पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था. राइट. Now let's talk about unity in diversity in India. So all religions celebrate the harvest festivals in their own styles. जितने भी जो religions हैं, regions हैं, right, वो अपने जो harvest festivals हैं, harvest festivals क्या होते हैं? जो फसल है जब वो रेडी हो जाती है तो उसकी जो कटाई होती है उसे हार्वेस्ट बोला जाता है. सो डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं. इन पंजाब उसको बैसाखी कहा जाता है. इन केरला द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ नोन एज ओनम. इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश महासंक्रांति कहा जाता है. तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है. सो दे आर ऑल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स. In spite of different languages, food habits and religions, we enjoy the unity of India. India जो है हमारा एक यूनाइटेड देश है, राइट. हम इस यूनिटी को एंजॉय करते हैं despite of having all these differences and diversities. So we also have interdependence of communities. ये जो हमारी communities हैं, all of them depend on each other, right. एक दूसरे पर interdependent है. Jawaharlal Nehru has used the phrase unity in diversity in India in his book Discovery of India. So India में जो ये टर्म थी unity in diversity, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यूज़ की थी. राइट. वैसे जो इसके जो मेन जिन्होंने इस टर्म को फ्रेज को कॉइन किया था वो थे विंसेंट स्मिथ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन. So progress in transport, communication and technology has enabled us to overcome geographical distances. आजकल के टाइम में इतनी एडवांसमेंट है ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये ख़त्म हो गई हैं. राइट. यू कैन गो एनी वेयर यू वॉन्ट, यू कैन हैव बिजनेस विद एनी कंट्री. राइट. द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क. एक ग्लोबल नेटवर्क से पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज हैं दे आर कनेक्टेड टुगेदर इन टुडेज टाइम्स. Globalization has helped in spreading ideas and informations and has increased international trade and commerce. इससे क्या हुआ है, लोगों के जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज हुए हैं, राइट. और ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ है. राइट. Now this is a case study about Kerala. Let's go through this. Kerala is a narrow strip of land between Arabian Sea and the Western Ghats in the southwest corner of India. So Western Ghats और Arabian Sea के बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप है जिसे केरला का स्टेट कहते हैं. राइट. सो जो वेस्टर्न घाट्स हैं, राइट, वो क्या है, एक माउंटेन रेंज है दैट इज अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. सो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में केरला आता है. इट इज़ फुल ऑफ कोकोनट ट्रीज एंड हैज़ ब्यूटिफुल बीचेस. राइट. वहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं, बीचेस बहुत सुंदर हैं केरला में. केरला हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी. मतलब वहाँ पर जो रेट ऑफ लिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा वहीं पर है. राइट. सो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केरला पीपल आर लिटरेट. वहाँ पर अनपढ़ लोग जो हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं. Women in Kerala hold a high position in society. People of many religions live together in harmony. और वहाँ की जो women हैं उनकी भी अच्छी पोजीशन है, उनका जो स्टेट है वो काफ़ी अच्छा है. राइट. और बहुत सारे रिलीजन्स के लोग मिलजुल कर केरला में रहते हैं. Now let's talk about the hills and valleys. Kerala has the highest mountains which have deep valleys and are covered with forests. So केरला के जो mountains हैं वो quite high हैं और जो valleys हैं वो deep हैं. राइट. और जो mountains हैं they are entirely covered with forest.
Cash crops like tea, coffee and cardamom are grown on the mountain slopes on large farms called plantations. अब cash crops क्या होती हैं? ऐसी crops जिनको उगाया जाता है business के लिए, right? पैसा कमाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए. सो वहाँ पर टी, कॉफ़ी, कार्डमम जैसी कैश क्रॉप्स काफ़ी हैं जो माउंटेन रीजन्स पर हैं, राइट. और इनको बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं इसलिए इनको प्लांटेशंस कहा जाता है. नाउ द मिडलैंड प्लेन्स इन दिस रीजन, हिल्स आर नॉट वेरी स्टीप. यहाँ पे जो हिल्स हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा हाइट जो है उसकी वो परपेंडिकुलर नहीं है, राइट. इट्स अ ग्रेजुअल स्लोप. द वैलीज आर वाइड एंड आर डॉटेड विद पैडी फील्ड्स. जो वैलीज हैं वहाँ पर राइस फील्ड्स हैं, राइस क्रॉप उगाई जाती है. द हायर लैंड्स एंड द हिल स्लोप्स हैव प्लांटेशंस ऑफ रबर, फ्रूट ट्रीज, टापियोका, दैट इज साबूदाना जिसे हम कहते हैं, एंड अदर कैश क्रॉप्स लाइक पेपर. सो जो माउंटेन रीजन है वहाँ पर ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं. जो हायर लैंड्स हो गए या जो हिल स्लोप्स हो गए वहाँ पर रबर, फ्रूट ट्रीज, टापियोका, पेपर, इन सब की प्लांटेशंस हैं. नाउ कोस्टल बेल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस बेल्ट इज कंपैरेटिवली प्लेन. ये प्लेन है. Large rice or paddy fields and groves of coconut trees are found. वहाँ पर राइस फील्ड्स काफ़ी पाई जाती हैं and groups of coconut trees बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. Now backwaters, these are very famous. The backwaters are a particular feature of Kerala. They are a network of canals and lakes that are fed by as many as 38 rivers, right? Canals हैं, lakes हैं जिनको 38 rivers से पानी मिलता है, right? सो इन सबको ये जो नेटवर्क है पूरा इसको बैक वाटर्स कहा जाता है. द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बाय बोट. किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो बोट से जाता है. जो रिवर्स हैं वहाँ पर देयर आर 44 रिवर्स इन द स्टेट विच बिगिन फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स. ये जो वेस्टर्न घाट्स जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट करती हैं ये रिवर्स एंड देयर आर 44 ऑफ देम. They are now being harnessed for power generation and irrigation. और अब इनसे रिवर्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है and also for irrigation purposes, that is supplying water to the fields. The backwaters and the inland waterways have helped in the growth of the coir industry. Coir क्या होता है? I'll tell you, which is the oldest traditional cottage industry in the state. Coir is made out of the coconut husk, राइट. जो कोकोनट के ऊपर का जो आप पार्ट देखते हैं उससे बनाया जाता है कॉयर. सो दिस इंडस्ट्री इज वेरी गुड इन दिस एरिया, इन दिस स्टेट. फिशिंग इज अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट. क्योंकि कोस्टल एरिया है वहाँ पर फिशेस बहुत हैं. सो दैट फिशिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दैट एरिया. केरला इज फेमस फॉर रोजवुड एंड सैंडलवुड कार्विंग्स. रोजवुड और सैंडलवुड की पे कार्विंग्स की जाती हैं. Kerala is famous for that. Brass and metal, bell metal lamps and gold jewelry, इन सब के लिए भी केरला फेमस है. Now Kathakali is a form of dance drama and Mohiniyattam is a classical dance form of Kerala. केरला का जो कथकली है, इट इज़ अ डांस एंड ड्रामा फॉर्म. उसमें ड्रामा भी होता है और डांस भी होता है. while मोहिनीअट्टम इट इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला. Then Kalairi Pattu is a famous मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट. इट इज़ अ मार्शल आर्ट जो कलायरी पट्टू है केरला की फेमस है. ओनम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट. द स्नेक बोट रेसेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल आर अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, राइट. जो उनका ओनम फेस्टिवल है उस पर स्नेक बोट रेसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती हैं. मैग्निफिसेंटली डेकोरेटेड स्नेक बोट्स टेक पार्ट इन द बोट रेस. इस बोट रेस में बहुत ही सुंदर से डेकोरेट की गई बोट्स का यूज़ किया जाता है. The Sabarimala Ayyappa temple and the Bhagwati temple at Attukal are famous pilgrim centers. श्रद्धालुओं के जाने के ये religious places हैं in Kerala, and the variety of life in Kerala can be seen in the religious and secular festivals which form an integral part of this cultural heritage. केरला के जो festivals हैं इसके अंदर आपको variety of life देखने को मिलेगी जो वहाँ पे follow की जाती है, right? So this was all about Kerala. This is a Kathakali dancer, right? Kathakali एक डांस ड्रामा है केरला का, right? So this is how Onam is celebrated. This is beautifully decorated boats and they are going to run a snake boat race. This is Sabarimala Ayyappa temple in Kerala, right?
So I hope you have understood what we mean by unity in diversity of our country. Okay, this is glossary. Please go through this. Let's take a quick review. Every society has its own culture. The culture of a society means its ideas, उस society में क्या ideas prevalent हैं, customs हैं, art है. Dance and music are important aspects of our culture. In India, there are two main kinds of dances and music, classical and folk. Food grains, vegetables and fruits grown in our country vary from place to place depending upon the geographical features of the area. हर जगह पर different kind of food उगाए जाते हैं. Land and climate also determine the kind of clothes worn by the people in an area. जिस तरह की जगह पर लोग रहते हैं वो influence करता है कि किस टाइप के कपड़े लोग पहना करते हैं. Progress in communication and transport technology has revolutionized our way of living. हमारे way of living में बहुत एक अच्छा change आया है because of progress in communication and transport technology. Right? So now let's begin with our exercises, children. First question is choose the correct option. आपको जो right option है उसका आपको right bubble fill करना है in the OMR sheet. First one, Pongal is celebrated in which state? So Pongal is celebrated in Tamil Nadu. Okay. Number 2, the number of principal languages recognized by the Indian Constitution are how many of them? 22. C. Number 3, a famous festival of Kerala. Kerala का famous festival कौन सा है? Onam. Number 4, people of Kerala speak which language? They use Malayalam, right? And Kuchipudi is the dance form of which state? Kuchipudi is the dance form of Andhra Pradesh. Clear everyone? Alright. Now next question is fill in the blanks. First one, the state of being different or unique is known as diversity, right? Number 2, most of the dress habits have come from our ancestors. हमारे पूर्वज जिस तरीके से ड्रेसअप हुआ करते थे उस तरीके से आज भी हमारी ड्रेस हैबिट्स होती हैं, ancestors. Number 3, Kerala is located in dash parts of India. So in which part of India? Southwest. Between the Arabian Sea and the Western Ghats. The term unity in diversity was coined by dash in India. India में ये term कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू. And the dash music finds its roots in the southern part of India. It is the Carnatic music. Right? Now, next part is true or false. Number 1, people in Kerala speak Kannada language. No, they do not. They speak Malayalam. False. Number 2, Baisakhi is a religious festival. No, Baisakhi is a harvest festival. False. Number 3, the Sikhs go to temples to worship. क्या Sikhs temples में जाते हैं? No, they go to Gurudwaras. False again. Number 4, Kerala is famous for spices. Yes, spices are grown there. True. And number 5, coconut is a commonly used ingredient in food in North India. No, coconut is not used in North India. It is used in southern parts. False. Clear everyone? Now these are detailed questions. Please go through them and try to attempt them yourselves. I have explained to you each and every question, right? So with this we come to an end of this chapter. I hope you have a good understanding of diversity now, children, right? So I'll see you in the next chapter. You all stay blessed and have a good day, children. Bye-bye.